screen. सभी को शो हो रहा है स्क्रीन पे पीपीटी? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उठा लेते हैं, देख लेते हैं। एक बार सभी लोग थोड़ा न्यूमेरिकल ध्यान से देखना, एक तो पढ़ लो फिर मैं बताता चलूँगा साथ साथ। एक बार सभी लोग इसको स्टडी करो। द क्रैंकिंग सर्किल रेडियस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल इंजन इज 300 mm. Okay, so that's mean it is our radius of crank, that is 300 mm. If we want to convert in meter, then we multiply by 10 to power minus 3. The mass of the reciprocating parts is 250 kg. That means mr. This is suffix. ये suffix में यहाँ पर mr. Okay. When the crank has traveled 60 degree from IDC, that is our theta, 60 degree from IDC, the difference between the driving and brake pressure is 0.35. That means it is the value of P1 minus P2, 0.35. The connecting rod length between center is 1.2 meter. That means small l equals to 1.2 meter. And the slender bore is dia of a cylinder, that is 0.5 meter in mm 500 mm. If the engine runs at 250 rpm, that means the value of capital N is 250 revolution per minute. And if the effect of the piston rod diameter is neglected, okay, that means A1 equals to A2, that means small a equals to 0. Here already mentioned the effect of piston rod diameter is neglected. Okay, the value of small a equals to 0. Calculate. First point is pressure on the slide bar. Second, thrust on the connecting rod. Third one is tangential force on the crank pin. Fourth point is turning moment on the crankshaft. So this is the given data. We already discussed the value of n is 250 rpm. Then omega equals to 2 pi n upon 60. We got the value 26.2 radian per second. I hope there is no problem. किसी को यहाँ तो कोई इशू नहीं होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। Anybody have any issue? No, sir. Okay. Now, for calculating the pressure on the slide bar, that means we want to calculate the value of Fn. हमें यहाँ पर क्या करना है, Fn की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और Fn की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? Fp पर, क्योंकि हमने अभी सॉल्व किया हुआ था सेकंड पार्ट में कि Fn की वैल्यू निकल के आएगी Fp इंटू tan phi, जो थर्ड वाला पार्ट कराया था अभी, उसमें हमारी Fn की वैल्यू क्या निकल के आई थी? Fp tan phi. दैट मीन्स हमें यहाँ पर पहले Fp भी कैलकुलेट करना होगा। जब हमें Fp कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स कि हम वी वांट टू कैलकुलेट FL आल्सो, ठीक है, लोड ऑन द पिस्टन, क्योंकि बिना लोड ऑन द पिस्टन के हम लोग Fp को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें सारे पैरामीटर ध्यान रखने हैं और फिर इसको सॉल्व करना है। Fp की वैल्यू क्या बताया था मैंने? Fp की वैल्यू होती है FL माइनस Fi। तो देखो वन बाई वन स्टेप हम चलते हैं। सबसे पहले हमने FL निकाला है। FL हमारा होगा क्या? मैंने बताया था लोड ऑन द पिस्टन, दैट वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर फोर्स, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पर हमें डिफरेंस इन प्रेशर गिवन है P1 माइनस P2,
multiply by area, that means pi by 4 into d square. Then we got the value this. यहाँ तक किसी को इशू है तो बताओ. No, sir. सभी को क्लियर है? मैं वन बाई वन स्टेप चल रहा हूँ, एक एक बेसिक से उठाता हुआ. ठीक है, आगे चलते हैं. नाउ रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक. ठीक है, दैट मीन्स L by R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. हमें L भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, रेडियस ऑफ द क्रैंक भी हमें पता है. ठीक है, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 0.3 we got the value of n equals to 4. Now fi equals to mr omega square cos theta cos 2 theta by n. तो हमें सारी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर. mr 250 गिवन है, ओमेगा हमने 26.2 कैलकुलेट किया हुआ है और r है हमारे पास 0.3 एंड cos 60 cos 120 upon 4 we got the value 19,306 Newton, the value of inertia force. Okay, so piston effort Fp equals to Fl minus Fi. Then we got this value 49,424 and in kilonewton 49,424 kilonewton. Okay, now we want to calculate the value of Fn and Fn equals to Fp tan phi. Fn equals to Fp tan phi. So we already got the value of Fp, but we don't know about the angle phi. So we use the relation sin phi equals to sin theta by n, theta equals to 60, n equals to 4. We got the value by the sin inverse phi equals to 12.5. Okay, so we put this value in our formula like this. Fn equals to Fp tan phi. We multiply this value and got the value of Fn is 10.96 in kilonewton. I hope सभी को समझ में आ गया होगा ये चीज. किसी को इशू है तो बताओ. Yes, sir. साथ साथ मुझे बताते चलना, जहाँ नहीं आए वहाँ मुझे बताओ, मैं तुरंत रुक जाऊंगा. ठीक है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है थ्रस्ट इन द कनेक्टिंग रॉड. ठीक है, व्हाट इज द थ्रस्ट इन द कनेक्टिंग रॉड? Fq equals to Fp upon cos phi. Fq equals to Fp upon cos phi. We already derived this expression. ठीक है, Fp हम निकाल चुके हैं, cos phi हमें पता है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा. तीसरे पार्ट में पूछा हुआ है टेंजेंशियल फोर्स ऑन द क्रैंक पिन, दैट मींस हमें Ft निकालना है. तो Fq sin थीटा प्लस phi. Fq हम ऑलरेडी इससे पहले निकाल चुके हैं, थीटा और phi हमें पता है, पुट करो आंसर आ जाएगा. Next is turning moment on the crankshaft. So turning moment on the crankshaft क्या होगा? Ft into R. The value of Ft is 48.28 and R is 0.3. Then we got the value this 14,484 kilonewton meter. 14 point something. Okay, in kilonewton meter. I hope everybody understands this numerical problem. Anyone Yes, sir. have any issue? Then discuss me. किसी को कोई डाउट है? डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हो या कोई भी हो, कोई No, गर्ल्स हो, sir. सभी को समझ में आ रहा है? नहीं, sir. numerical? सभी को क्लियर है प्रॉब्लम? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Sir. अगला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ एक और, इसको एक बार आप पढ़ो. ये अभी जो मैंने प्रॉब्लम डिस्कस की थी, ये थी हमारी हॉरिजॉन्टल इंजन के लिए. ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने वर्टिकल के लिए लिया और मैंने तो बताया भी था कि जब हम वर्टिकल का केस लेते हैं तो कुछ और चीज होती है और हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो कुछ और. एक बार क्वेश्चन पढ़ो और मुझे क्वेश्चन को पढ़ के ये बताओ उसमें क्या क्या पूछा हुआ और हमें क्या क्या निकालना होगा. एक बार स्टडी करो उसको और मुझे बताओ इसमें क्या क्या पूछा हुआ, क्या क्या निकालना है.
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, एक बार पढ़ लो उसको अच्छे से, रीड दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। Okay, I am going to read this. A vertical double acting steam engine has a slender 300 mm diameter. What is this? What is this? This is the value of D. Okay, which is used during the find out load on the piston. Okay, and 450 mm stroke. 450 mm stroke. Stroke क्या होता है हमारा? कोई बताएगा? सर कैपिटल वर्टिकल एल सर लैब कैपिटल एल सर कैपिटल करण बताओ जरा इसके बारे में थोड़ा कुछ बता पाओगे? करण है क्लास में? कैपिटल एल होता है सर स्ट्रोक। कैपिटल एल होता है, ठीक है। ये तुम लोगों ने आईसी इंजन के अंदर पढ़ा होगा, जब तुम 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ रहे होगे, तो जो हमारा स्ट्रोक होता है एक लेंथ होता है जिसमें हमारा पिस्टन ट्रैवल करता है टीटीसी टू बीटीसी या इनर डेड सेंटर टू आउटर डेड सेंटर, तो हमारी स्ट्रोक लेंथ होती है। और जो स्ट्रोक लेंथ होती है वो हमारी किसकी इक्विवेलेंट होती है? 2r के, डबल ऑफ रेडियस के। तो कैपिटल एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से? 2r। तो यहाँ से हम स्मॉल r कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज l/2। किसी को कोई इश्यू है तो बताओ, किसी को कोई इश्यू है इस चीज में तो मुझे बताओ जरा, ठीक है। इससे मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है लाइन r इक्वल्स टू l/2। अदेव कोई इशू है भाई? नहीं सर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट हैज अ मास ऑफ 225 kg, दैट मींस हमें mr की वैल्यू गिवन है, r हमारा सफिक्स में है, ठीक है। तो वो है हमारे पास कितना? 225। आरपीएम दिया हुआ है 200, तो हमने देखो यहाँ पर ओमेगा निकाल लिया, 2πn/60 करके इतना आ जाएगा, ठीक है। और आगे वो कह रहा है द कनेक्टिंग रॉड इज 1.2 मीटर लॉन्ग, दैट मींस स्मॉल एल हमारे पास कितना गिवन है? ये चीज याद रखना, स्मॉल एल और कैपिटल एल में कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल एल है हमारा कनेक्टिंग रॉड का लेंथ, कैपिटल एल है हमारा स्ट्रोक का लेंथ, जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। व्हेन द क्रैंक हैज टर्न 125 डिग्री फ्रॉम द टीडीसी, वो हमें थीटा गिवन है यहाँ पर कितना? 125 डिग्री। The steam pressure above the piston is 30 kilonewton per meter square and below the piston is 1.5, मतलब हमें P1 और P2 गिवन है यहाँ पर, ठीक है। किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो न्यूटन में कन्वर्ट कर दो 10⁻³ करके। दूसरा है आगे कैलकुलेट द इफेक्टिव टर्निंग मोमेंट ऑन द क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टी की वैल्यू, कैपिटल टी, कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है। और कैपिटल टी तक आने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा भाई? एफ पी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कैपिटल टी का फॉर्मूला था वो क्या था? एफ पी मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन कॉस फाइव मल्टीप्लाई बाई आर, ठीक है। तो हमें देखो एफ पी निकालना पड़ेगा, एफ पी निकालना होगा तो हमें एफ एल भी निकालना पड़ेगा और एफ आई भी निकालना पड़ेगा। थीटा हमें गिवन है, हमें फाई भी निकालना होगा जैसे हमने पहले निकालना है, ठीक है। अब क्योंकि ये वर्टिकल इंजन का केस है तो इसमें हमारा थोड़ा चेंजेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज और क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हमें एरिया जो दिया हुआ है भाई, एक तो एरिया सिलेंडर का डाया, तो उससे हमें मिल गया क्या? A1 मिल जाएगा, A1 के लिए मिल जाएगा, ठीक है, π/4 × d²। अब जो हमारा A2 होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा A1 माइनस स्मॉल a, क्योंकि हमें पिस्टन रॉड का डाया गिवन है क्वेश्चन के अंदर। कितना गिवन है? पिस्टन रॉड का डाया भी हमें 50 mm, दो ये रहा 50 mm दिया हुआ है, पिस्टन रॉड का डाया दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर स्मॉल a की वैल्यू निकालनी होगी π/4 × d², स्मॉल d², ठीक है। चलो आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल को देखते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका होगा, ये देखो, ठीक है। एक मैंने फिगर बनाने की कोशिश भी की है साथ साथ, कि थोड़ा इस तरह से हो, ये इसी के लिए फिगर नहीं है लेकिन एक मैंने दिखाया है ऐसे नॉर्मली इस तरह से हो सकता है, ठीक है। ये कोई हमारा वर्टिकल है, ये 700 तो हमें गिवन नहीं है, ऐसे मैंने लिख दिया है इसको।
इस तरह से हमारा ये काम करता है। टीडीसी हो गया, एवीडीसी हो गया, एंगल दिया हुआ होगा, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर L/R निकाला है सबसे पहले, फिर इनर्शिया फोर्स निकाला है, mr ओमेगा स्क्वायर कर दिया, cos थीटा प्लस cos टू थीटा अपॉन n। mr की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जितनी भी है जो भी है। ठीक है, जो भी हमें वैल्यू गिवन है उसको हमने निकाल लिया है और इसमें पुट कर दिया वैल्यू को। तो इस तरह से इसको हम Fi निकाल लेंगे, Fp निकाल लेंगे। अब साथ में हमें ये वाला फैक्टर Fl माइनस Fi प्लस WR, ठीक है, Fl को पुट कर देंगे, जो भी हमारी वैल्यू है यहाँ से आ चुकी है। प्रेशर फोर्स करके जो भी हम निकालेंगे, Fi हमें पता है, WR हमें मास गिवन है रेस्पिरेटिंग पार्ट का, तो मल्टीप्लाई बाई G कर देंगे तो WR आ जाएगा। इस तरह सॉल्व कर देंगे। ये इसमें जो भी डाटा है इससे रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन से। ठीक है, मैं इसको केवल समझाने पर्पज से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, Fp आ जाएगा। फाई निकालने के लिए वही रिलेशन हमें यूज करना है, साइन फाई इक्वल टू साइन थीटा बाई एन। थीटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो हम साइन फाई निकाल लेंगे और उसका इन्वर्स कर देंगे तो हमारे पास फाई आ जाएगा। फिर लास्ट में हमें पूरा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा, सॉल्व करके कहीं लिख लेना आप लोग। फाई की वैल्यू आएगी, मैं आंसर बता दे रहा हूँ सबका। फाई की वैल्यू आ जाएगी 8.84 डिग्री, 8.84 डिग्री। ठीक है, Fp आएगा टोटल सॉल्व होके Fl माइनस Fi प्लस WR करोगे। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 18,397 और T की वैल्यू आ जाएगी, सब कुछ पुट कर आगे जितना भी हमने वैल्यू निकाला है 3021.6 न्यूटन मीटर, 3021.6 न्यूटन मीटर। तो किसी को कोई इशू है इसमें, कर लोगे या मैं करवाऊं? बताओ एक बार जरा। कर लेंगे सर। हो जाएगा ना, मैंने यहाँ पर डाटा दूसरा डाला हुआ है। ठीक है, चाहते हो तो मैं करवा भी दूंगा, लेकिन मैं समझा चुका हूँ कैसे करना है, क्या करना है। वर्टिकल का केस बता दिया, इससे पहले हॉरिजॉन्टल था इसलिए WR का कोई रोल नहीं था, लेकिन वर्टिकल का केस है तो हमें WR ऐड करना होगा। अब WR इनर्शिया फोर्स के साथ ऐड होगा, क्यों होगा? क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में हमारा WR हमारा कहाँ एक्ट करेगा, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो वो ऐड हो जाएगा। इनर्शिया फोर्स हमारा ऊपर की तरफ एक्ट करेगा एक्सेलरेटिंग फोर्स के अपोजिट में, इसलिए माइनस हो जाएगा Fi। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा Fl माइनस Fi प्लस Mr इंटू G। तो आई होप आज के लिए काफी रहेगा। किसी को कोई इशू है तो मुझे बताओ। एक बार इस क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।